My name is Sridhar Rangayan. I'm the Festival Director of Kashish Mumbai International Queer Film Festival, which is going to be having its 12th edition from August 19th to September 5th. Welcome to another live chat. We're just going to be coming in very soon with more people who are going to join in. So thank you for holding on. So Kashish was supposed to happen May 20th to June 6th, but it's been rescheduled right now to August 19th to September 5th. So I hope all of you will join in. Hi Nilakshi, thank you for joining in at the Kashish live chat. So we're going to be having more people. It's at 6 o'clock, but I just logged in a bit early. Hello everybody. So hope all of you will join in for this wonderful Insta chat with Rudrani Chetri and Madhuja Nandi, amazing activist, transgender activist. So hang on there, and we hope to go live at 6 o'clock very soon. So as you know, Kashish basically has been doing the annual film festival every year for the last 11 years during May. May was a time everybody would come to Mumbai to be at Kashish, and but this year we have to reschedule it because of the current pandemic situation, and we hope that all of you will join in to celebrate in August 19th to September 5th. Oh, thank you, Rudrani, for joining in. But I'm not able to see Rudrani. But Rudrani has to send a message saying that like she wants to join the live chat. I'm not able to see that. Rudrani, can you log out and log in again by any chance so that we get that particular message for me? If Rudrani is... Hi Rudrani, are you able to? Yeah, I can see this now. Hi Rudrani, good to see you. Totally welcome. Hi. Oh, you're looking so beautiful. Totally. Thank you so much. And of course, you have to look beautiful. You're an actress, of course. So and a model. So thank you for joining in for sure. Thank you so much for having me. So it's a privilege to talk to you. I'm waiting for Madhuja Nandi from Varta Trust to join us also. So in the meanwhile, I'm not good at this at all. Me too, same here. So what's been happening with you? How is the pandemic treating you? How is it right now for you personally? So, Sridhar, it is somehow like today I have taken a day off sort of, because everyday routine is to get up and load my car with all dry rations and go to different places where the food is needed. So I think not only me, but all the sister all across, India and globe, they all have been supporting, other sisters who really need help at this point of time. And I remember how you supported by giving us a donation, which helped us a lot. And with that donation, we help a lot of people. So this is what we have been doing on a regular basis. But today is my day off, and I'm enjoying this live session. Thank you. So what did you do since morning? Let me know. How was your day been today? Oh, so we did a video call with, a kind of a group call with my all friends. School friends, not school friends, but after college friends and all, we did
what all happened, and old stories, crazy stuff. And those people who know me before transition, and even though they want to address me as my present name, and they keep calling me with the older name, and I said, no, don't do it again, or I'm gonna hang up. So this is what I did, and I got little ready, so I just, because I wanted to look nicer in front of all of the people, because Kashish is something very big, and I'm so crazy mad about it. I always wanted to be part of it, and I feel so privileged. I wish I can, when everything will be okay, I'll be in person, wanna be part of it. Thank you so much. Yes, totally. We want you to be at Kashish for sure. But this year again, Kashish will be held online from August 19th to September 5th. Unfortunately, we are not able to do the particular live event. But we don't know. Maybe by September, things will open up and maybe we'll have one day of a live event. We don't know at this point of time. Let's see how that goes. Right. I'm just looking at Madhuja, whether she's here or Oh, she's not. joined. She joined? Yes, I can see her. Oh, yeah, I can see her now. Yeah, correct. But yeah, I've got her now. Fantastic. Madhuja is joining in right now. So what happened to her? Oh, yeah, there she is. Okay. Hi, Madhuja. Hi, Madhu. बस बढ़िया हूँ बिल्कुल बहुत खुशी हुई आपसे मिलके So to start the conversation, I just want to mention that we are in conversation today with two wonderful transgender activists, Rudrani Chetri from Mitra Trust based in Delhi and Madhuja Nandi of Varta Trust based in Kolkata. Two very diverse people are doing amazing work for the last many years. Two organizations which are doing fantastic work, Mitra Trust and Varta Trust. So let's know a little bit more about how Mitra Trust started. Rudrani, can you start a bit about the journey of Mitra Trust, how it started, how many of you started it, and how has been the activities? So, see, my career and everything is such an accident. It's such a bump. It keeps happening to me. So, how Mitra happened is, when I was very young, it was very young. I went to this organization, they were doing a target intervention program for MSMs. So, and after a couple of visits, they said one thing to me that, if you want to come here, behave normal. So, I got really, heartbroken, not pissed off because, I did not know what to do at that point of time, but it was really heartbreaking for me. So, because, my priority was not taking condoms from somewhere or, learning about HIV because I was able to get these from some other places, but I wanted to know myself, and there were very, limited resources available. So I stepped out, and a couple of people who thought crazy like me the same way, they did too. And a very good friend of ours, and Aditya Bandyopadhyay, and he said one thing, that if you want to help more people, because I understand what you mean, so start this, organize something. And this is how he helped me form this Mitra Trust. And it happened in 2005. It was Delhi's first community based organization. uh, um, I work with the community, and this is what I've been doing for so many years. And the best part is, we're not a very big organization, but we are kind of, I've seen people growing. I've seen people, doing good in their life. So, yeah, this is what Mitra is. And how many people are you? Do you have a board or something? And are they only transgender people on the board? How do you manage them, etc.? And what kind of projects do you do? Yeah. So, Mitra is, at present we have a board member which is me. One of them is me. One person who self-identifies as a gay person, and there are people who identify hijras, and there are people who identify themselves as bisexual. And we don't have anybody
till who identify as a lesbian person, but I think very soon we're gonna have somebody, because very recently uh, we have started also working with the trans men, because we have started the shelter home. So I think there are a lot of things which I also need to learn, and this is what our board is. And one very soon I'll see this board to be completed by having a lesbian person, you know, representation. So, and the kind of project which we do right now is more health sort of thing, HIV centric, which is a target intervention project. And another is shelter home, funded by Ministry of Social Justice and Empowerment, National Institute of Social Development. And I know this is going to be crazy, but I am enjoying, some crazy shit happen in shelter home, but you have to handle. First time I'm getting this feel of, a parenthood, how, a parent must be controlling their children. So yeah, or yeah. So this is what we do, and a lot of other projects we have been doing in past. We have worked with UNAIDS, we have worked with USAID, we have worked with Elton John. We have different work with a different organization. So कुछ भी community के लिए होता है आता है, maybe global fund. So I've tried my best to be part of it. Also, I am a part of InfoSem as governing board member, and yes. Okay, thanks a lot for sharing your thoughts about how Metro Trust was formed and it's doing so good. For everybody who has joined here today for the live Kashish Insta chat, we are speaking to Rudrali Chetri, who is a founder of Mitra Trust, and to Madhuja Nandi, who is a trustee and founder of Varta Trust. So now over to Madhuja Nandi. So आपने वार्ता ट्रस्ट कैसे शुरू किया, कब शुरू किया? आप पहले से ही वार्ता ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं या बाद में जुड़े? जर्नी क्या है वार्ता ट्रस्ट का? ये जर्नी था. हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरे को सुनाई दे रहा है? या बिल्कुल. ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है. कुछ दुख भरी भी है मेरे लिए. मतलब मैं शुरुआत जो ऐसा हुआ कि तब मेरे को एकदम नया ट्रांजिशन हुआ. I went in the 6 reassignment surgery and then I just completed the surgery and all. फिर उसमें मेरा को ट्रांजिशन पीरियड में क्या हुआ कि नाम चेंजिंग on different type of things are happening, and then some type of identity crisis are also happening during that time. So I was working in an NGO. It's a big NGO. It's a national level NGO. And suddenly what happened is that suddenly they told me to go for a transfer in a different state because I was working as a compliance coordinator of Jharkhand. So they have wanted to shift me. The thing is basically I cannot shift that time because I have to look after my old parents because I stay with them. I have a good respect with them because मेरा जिंदगी में मैं तो कभी भगवान देखे नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरे मम्मी और मेरा पापा वो दोनों भगवान है. और यही मैं भगवान को हमेशा अपना जिंदगी अपना उन लोगों का कदम में मैं रहना चाहती हूँ. चाहे जितने बड़ा मेरे को पैसा मिले या ना मिले, दैट डजंट मैटर, द करियर डजंट मैटर. तो उसमें क्या हुआ, मेरे को रिजाइन करना पड़ा. और उसके बाद मैं सोच रही कि क्या करूँ. एक तो नंबर 1 है आई हैव चेंज्ड माय सेक्स. नंबर 2 इज दैट उसके बाद बहुत ऑफिशियल प्रॉब्लम होने लगा. And number 3 is that I have to find for a job because I have to do my earning and everything. I have to earn my bread and butter. So उसमें क्या हुआ कि अचानक मैंने दारजी, मैं पवन को दारजी बोलती हूँ, तो दारजी से बातचीत होने लगा कि क्या करे क्या नहीं करे. तो then दारजी, me and there's one person called Kaushik Gupta. 2012 ये 3rd जून है, मैंने आज का ही दिन है. वो हम लोग सोचे कि हम लोग मिलके चलो कुछ बनाए. We create something for ourselves. So ये क्या हुआ कि 2012 3rd जो जून है उसमें हम लोग ठान लिया कि हम लोगों को something we have to do something else for our community people, for the good of our community people, for the sake of our community people. तो तीनों मिलके हम लोग ट्रस्ट के लिए राजी हो गया. So we have tried to go for the trust. Then उसके बाद क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर और जो ऑडिट का चीज निकालो, उसके बाद मीटिंग का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब करो. तो खिंचातानी दौड़ा भागा दौड़ी बहुत कुछ हुआ, यहाँ वहां गया, फिर बहुत कुछ कलेक्शन हुआ, एंड फाइनली इट इज डन. वार्ता ट्रस्ट इज डन.
रेलगाड़ी जो है वो पटरी में आ गया, दैट्स अ गुड थिंग। और उसके बाद क्या हुआ, राइट दिस मोमेंट वी हैव 24 वॉलंटियर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोग खाली ऐसा नहीं कि इंडिया में वॉलंटियर लिया, we have taken volunteers from different places of the different countries। और फिर हम लोग मेनली क्या करते हैं कि जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के ऊपर ज्यादा, इसका ये जो मुद्दा है इसके मुद्दे के ऊपर हम लोग ज्यादा काम करते हैं। तो उसके अलावा ही हम लोग एडवोकेसी करते हैं, वी हैव रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, we have we work for the gender and sexuality trainings and different type of referral services भी provide करते हैं। फिर उसके बाद छोटा मोटा जो हम लोगों का ये जो रेशनिंग का सिस्टम है, जो डोनेशन आता है उसको हम लोग ट्रांस कम्युनिटी का पीछे खड़ा होता है। जो यहाँ पे आप लोग जानते हैं अक्सर देयर इज अ किन्नर कम्युनिटी का पीपल है यहाँ पे ज्यादा, तो उन लोगों का चीज हम लोग को मुद्दे नजर रखते हुए हम लोग कुछ ये जो 2020 में जो कोविड हुआ उसके लिए भी हम लोग बहुत कुछ चीज डोनेशन के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं, बहुत सा काम किए। तो इसी तरह छोटा मोटा काम करने लगा। अभी यहाँ पे हम लोग का वार्ता ट्रस्ट में लेस्बियन भी है, बाइसेक्सुअल भी है, मेरे जैसे ट्रांस वुमन भी है, फिर ट्रांसजेंडर वोपन भी है। फिर उसके अलावा आपको ट्रांस जो ऐसा होता है ना कि ट्रांस मैन मीट जो है, दीप है, वो सब भी हम लोग का साथ मिले जुले हम लोग इकट्ठा होके काम करें। बिकॉज एज वी ऑल नो कि 5 जो हाथ का अंगली है इकट्ठा मिलके काम करेंगे तभी जाके शक्ति बनती है, शक्ति तो एक हाथ से नहीं बनती, ये मेरा ऐसा सीख हुआ है ये सब काम करते हुए। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग ये जो हम लोग का मंथली वेबजीन है, हर कोई मंथली में हम लोग बेसिकली क्या होता है कि एक वेबजीन निकालते हैं जिसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स है, डिफरेंट यूथ सेंसिटाइजेशन है और उसका ट्रेनिंग भी करते हैं, ठीक है। और खास करके जो वॉलेंटियर्स लोग हैं उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग भी दिलाते हैं सब। जो जेंडर सेक्सुअलिटी का जो वायलेंस है उसका ऊपर मुद्दे नजर रखते हुए हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। एंड एज वेल एज हम लोग का लास्ट में जो ना ऑनलाइन लोकेटर जो है, वी हैव आल्सो ऑनलाइन लोकेटर, क्योंकि बहुत सा ऐसा है कि जो बाहर उभर के नहीं आते, they feel shy to just come out and express themselves. For those people, maybe they need help for the doctors, they need help for different type of referral services. And for that reason, basically, we have fixed up a online locator. The work of the online locator is to help them to go for the different type of for referral services, take different help, वो सब ये हम लोग काम करें। और अगर काम के लिए हिसाब में जाए तो हम लोग छोटा मोटा रिसर्च अब तक काम कर चुके हैं, ठीक है। और फिर जेंडर सेक्सुअलिटी में पार्टनर का जो वायलेंस है, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, फैमिली वायलेंस, उसका ऊपर ट्रांसजेंडर लोगों का काम किया, किन्नर लोगों का जो ये सब होता है उनका ऊपर काम किए हैं। और ऊपर से जो हम लोग काम किए कि जैसे ये सब रेशनिंग सिस्टम जो हम कर रहे हैं, अभी भी कर रही हूँ, आगे पिछले बार 2020 में किए, और काशिश फाउंडेशन जो हेल्प किया है उसको भी बहुत अच्छा से किए हैं। तो यही सब हम लोग काम करते रहे, यही सब चीज हम लोग को आगे चले। और उम्मीद करती हूँ कि मैं अपना कम्युनिटी के लिए LGBTQA जितने ऐसे कम्युनिटी के लिए इकट्ठा होकर काम करे। और आप लोग शक्ति है, क्योंकि काम तो अकेले नहीं हो सकता, सबको मिल के एक साथ रहेंगे जुटला के, देन विल बी वर्किंग मोर, यू नो। थैंक्स अ लॉट मधुजा फॉर शेयरिंग दिस। बहुत अच्छा लगा आपको सुनते हुए कि 5 उंगली से बनती है, 1 उंगली से काम नहीं बनते है, यूनिटी स्ट्रेंथ। बट आप अपना थोड़ा सा क्या आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि आप जब ग्रोइंग अप थे, आप कौन सा शहर से थे और आपने क्या पढ़ाई किया और आपको क्या मुश्किलें हुई जो अपने आप को एक्सेप्ट करने से ट्रांसजेंडर बन के? देखिए मुश्किलें तो बहुत हुआ, ऐसा नहीं कि बिना मुश्किल से मैं इस तरह का जगह में खड़ी हुई। मैं अगर मानो कि शुरू करूं, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, इज दैट आई बीन स्टार्टेड माय जर्नी as a transgender, I would say, because I am feel shy to say myself that I born as a boy or something like that. और फिर क्या हुआ, उसमें से बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत मारा पीटी हुआ। आई वेंट फॉर 35 टाइम्स, आई हैव डन जनरल डायरी GDE फॉर अबाउट 35 टाइम्स। क्योंकि जाते हैं बाहर में तो खींचातानी, मार्केट प्लेस में जाओ तो खींचातानी, बिकॉज आई रिसाइड इन ए प्लेस कॉल्ड बारासात। इट्स ए स्मॉल टाउन, इट्स बेसिकली क्या होता कि कोलकाता से बहुत दूर है, इट्स अबाउट 30 किलोमीटर कम से कम। लेकिन ये क्या होता है ना, यहाँ पे आदमी थोड़ा गांव टाइप का है, मतलब थोड़ा
हम लोग बांग्ला में इसको मोफुशाल बोलते हैं, मैं साबाब ऑफ कैलकाटा। तो उसमें क्या होता है ना, अक्सर मार्केट में जाओ तो ही, किसी भी जगह पे तो ही, और फिर लड़का लोग जो होता है वहाँ यहाँ का, they make always fun and frolic of our thing. They try to heckle in each and every moment. Even if they do it now also. ऐसा नहीं कि अभी सब बंद हो गया, अभी मैं मधुजा बन गई, सब कुछ एकदम इट्स ऑल रोजी पिक्चर्स अराउंड मी, नॉट दैट। बहुत सा प्रॉब्लम होता है, अभी भी चल के होता है, लेकिन मैं क्या होता है, अभी कुछ भी चीज आएगा then I clap my hands and go away. Simple like that. I have to be. I make myself strong. I have to make myself. I have to show myself that I'm not afraid. If they come and say different type of things, पहले भी मैं बोला है, चल हट, तेरे को क्या है, तेरे को वो सब बात में बात नहीं आता। कोई मानो कि शॉपिंग मॉल में जाए तो दरवाजा बंद है, then suddenly I started speaking what the hell is this educated person? I have everything else. I can't do for anything else. ये सब हमको लड़ाई लड़ना पड़ा बहुत सारा। I have to win for 35 GD because ये जो ये साबाब है, ये बहुत बेकार जगह, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इसी जगह पे खड़ा होके मैं बोलूंगी कि मेरा जो पारा है, मेरा जो इलाका है, उसको मैंने सेंसिटाइज किया, उसको मैंने अच्छा से बनवाया। दूसरा जगह पे कोई लोग दूसरा जगह का ट्रांसलेशन मेरे पारा में आके गणेश पूजा का टाइम दे डू द पूजस, दूसरा पारा की ट्रांसजेंडर है दुर्गा पूजा में आके हम लोग यहाँ पे अंजलि देते, क्योंकि उन लोगों का पारा में कोई जगह नहीं है, उन लोग का, उन लोगों का पारा में उन लोग हजारों प्रॉब्लम होता है। तो आई हैड मेड माई सेल्फ, क्योंकि वो सब हम लोग जो काम करते वक्त सीखा कि प्राइमरी स्टेक होल्डर, सेकेंडरी स्टेक होल्डर, उसी तरह मैंने मैप आउट किया। I had made map of myself, and then I started working with those people, whom to talk with, whom not to talk with, how to talk with, and what type of thing I need to go on. तो इसी तरीके जाके बहुत लड़ाई झगड़ा करके बहुत कुछ। अभी तो दुनिया देख रहा है, मैं रेशन बांट रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं कूद रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ। तो क्या हुआ ना, आहिस्ता आहिस्ता दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी, कि उन लोग का पास ये चीज, ये तो क्या होता, नॉर्मलाइज होता, तो नॉर्मलाइज किया। अच्छा, इसके बीच में मैं आपका चीज हम टोकना चाहती हूँ कि मैंने आई हैड बीच में 5 साल और उससे पहले 5 साल, फॉर 10 years आई हैड वेंट फॉर वर्किंग जो हम लोग का कम्युनिटी का बाहर जो है उसमें जाकर काम करने का कोशिश किया। एक एनजीओ है जो नारी लोगों को, वुमेन को लेके काम करता है, एंटी ट्रैफिकिंग इशू में लेके, उसमें काम किया। और इससे पहले और एक तो एनजीओ में काम किया जो मतलब समाज का सब स्तर का लेके काम करते, लेकिन आउट ऑफ एलजीबीटी पीपल। लेकिन वहां पे काम करने का जो तजुर्बा है अच्छा है, लेकिन मतलब क्या होता ना कि आई फेल्ट माई सेल्फ दैट आई एम ए सेकेंडरी सिटीजन, मतलब हम फर्स्ट हैंड नहीं है, बिकॉज आई हैव, मेरे में वो हुनर है, मेरे में दिमाग है, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, मेरे पढ़ाई लिखा है, मैं क्वालिफिकेशन, but within that they are actually thinking of my gender identity and everything. It's stopping when they send someone outside of the country and abroad. They tell me to give training, they tell me that you do something else, you help them, you make this sheet, you make that one. I actually help them in everything, but when the time comes they said you cannot represent the organization if you don't mind that this person is new and she is a good female, so she should be representing, not me. तो मेरे को समझा देना पड़ता कि आई एम नॉट ए प्योर फीमेल। That's really a fantastic journey, Madhuja. Thank you for sharing that. बहुत अच्छा लगा, आपने बिल्कुल लड़ाई करके अपनी जगह बनाई। Rudrani, you also made a place for yourself. You started your modeling agency, your I think beauty parlor. What has been, I mean, in short, what has been your journey by enabling not just yourself but a community of transgender people around you? हिंदी में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। अच्छा, अब मेरे को लगता है मेरी जिंदगी रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है, मतलब ये प्लान तो नहीं था कि मैं एक दिन रुद्रानी छेत्री होंगी, पर एज आई ग्रो मैंने अपने आप को किसी चीज के बारे में गिल्टी फील नहीं किया, आई थिंक, एंड देयर वाज नॉट सेल्फ शेम। एंड बहुत सारी मेरी ट्रांस सिस्टर्स अभी हैं या कम्युनिटी के पीपल है, दे आर ओपन एंड आउट, दे आर नॉट अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ।
there can be problems, in the family, and there can be, circumstances जहाँ पे आप अपने आप को आउट नहीं कर सकते. But I think एज अ मैं अब सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, पर मैं इन जनरल बोल रही हूँ, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो एंड व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग योरसेल्फ ब्यूटीफुल, आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट to develop yourself and work on you. So I think this is how my life, it has been. And I have accepted myself. I have made, those people who rejected at some one point of time, some point of time, they accepted me, though I did not wanted their them to accept me. But I wanted to make a point that मैं जैसी हूँ, मैं जैसे रहना चाहती हूँ, मैं वैसे भी अपनी जिंदगी में बेहतर कर सकती हूँ. अक्सर पेरेंट्स इसीलिए डर जाते हैं व्हेन दे से कि मैं ट्रांसजेंडर बच्चा हूँ. उनको लगता है कि क्या करेंगे जिंदगी में, भीख मांगेंगे, धंधा करेंगे, या ज्यादा से ज्यादा हायरार्की में रहेंगे तो टोली बधाई करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. पर आई थिंक अब इतने सारे एक्टिविस्ट लोग हैं पूरे भारत में, और उन्होंने इतना फैबुलस काम किया, इतना प्रोएक्टिवली काम किया. आई थिंक देयर इज नाउ, आई थिंक सब लोग कुछ भी बन सकते हैं. आई थिंक, एंड दिस इज व्हाट आई हैव लिव्ड. एंड आई इफ अगर हो सके तो हम जैसे कुछ लोग अगर जिंदगी में किसी और की जिंदगी में बदलाव ला सके, क्योंकि हमने अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपने आप को प्यार किया, एंड अपने वो अचीव किया जो हमें करना था, तो आई थिंक यही मेरी जिंदगी रही है. और कठिनाइयां तो खैर आती ही रहेंगी, कठिनाइयों का कभी अंत होने वाला नहीं है. पर सबसे बेहतरीन बात है कि हम एज अ कम्युनिटी, हम जितना भी आपस में कभी कभी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. और यही जिंदगी आगे भी ऐसी चलती रहे. पता नहीं इन्फेक्शन आएगा नहीं आएगा, पर ये दोस्ती और ये रिश्ते आगे चलते रहे जैसे अभी तक चलते आए. Fantastic. Well said. But Rutali, tell me a little bit more about your experience of working as an actress on The Color of Life. You played one of the important character of Anarkali in the film, The Color of Life. अभी I think Netflix पे चल रहा है, Amazon पे चल रहा है, बताएंगे वो भी तुमको. द लास्ट कलर अभी Amazon प्राइम पे है. ये विकास खन्ना का डायरेक्टोरियल डेब्यू है उनका, और ये उनकी ही किताब से आया है, द लास्ट कलर. ये गंगा किनारे जो विडोज हैं उनके बारे में है, पर उन्होंने और भी माइनॉरिटीज को इसमें रखा है. मुझे हालांकि माइनॉरिटी शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रही हूँ. तो उसमें एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर है जिसके लिए मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने, उनके साथ मैंने पहले किसी एक छोटा सा कैंपेनिंग के लिए काम किया था, तो उनको पता था कि मेरा मॉडलिंग एजेंसी है. एंड ही अप्रोच मी, हिज नेम इज नीरज, एंड नीरज अप्रोच मी एंड सेड, Vikas is doing a film and he wants to cast, so can you help, because I don't have any link with trans community and he wants to cast somebody who's a trans person. So मैं अपने साथ दो व्यक्तियों को ले गई, and there was nothing in my, and I said like, you go and audition for it, and they said that we are not going to go alone, आप चलोगे तो हमें तो हौसला मिलेगा और हिम्मत मिलेगी and all that. So मैं गई, उन दोनों का ऑडिशन हुआ, और मैं जैसे ही जा रही थी, नीरज ने मुझे पीछे से आवाज दिया, रुद्रानी कहाँ जा रही है. I said what not, अब क्या. तो उसने बोला प्लीज आप भी ऑडिशन कर दो. तो I did it for a fun sake, and Vikas saw it, and then Vikas called me and he narrated these, he said, script, and it was a very strong script where a transgender woman is harassed and lives in a difficulty of life. There is a police who tortures, and there is a community who hates a trans person, and at the same time there is a good person in a transgender person is shown that she is helping a kid to grow, and उसको एक पुलिस वाले से बचा रही है वो, कि उसको वो सेक्सुअली अब्यूज ना करे, क्योंकि ट्रांस कम्युनिटीज के बारे में ये मिथ है कि वो बच्चे चुराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. तो आई थिंक जब मैंने ये पूरा का पूरा कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, तो मैंने सोचा कर लेते हैं. जिंदगी में हर चीज में जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो इसमें भी ले लेते हैं. एंड भगवान की दुआ से बचपन में जितने ड्रामा करते थे वो सब अभी काम आई.
उन्होंने मुझे कहा कि आप बड़ी नेचुरल एक्टर हो, सारे टेक्स एक दो टेक में हो गए तो, एंड आई रियली एंजॉयड इट। आई फर्स्ट टाइम आई हैव सीन, आई एम ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन योर लॉट ऑफ फिल्म्स श्रीधर। और गुलाबी आईना हम तो कॉपी कर करके ना, पहले डिस्क में कॉपी कर करके देखते थे। तो आई ऑलवेज लव फिल्म्स एंड द होल सेटअप। तो मेरे लिए बहुत फन था। एंड ऑफ कोर्स अगर भविष्य में और मौका मिलेगा तो आई रियली लव टू वर्क। Fantastic. I mean, so all of you who have not watched The Last Color, please watch it on Amazon Prime. Rotani plays Anarkali in the film. It's a fantastic film about the Vrindavan widows. So watch that. And Madhuja, आपके बारे में मुझे पूछना था कि लॉकडाउन में ट्रांसजेंडर को क्या क्या तकलीफें हो रही है आजकल? 2 साल से तो लॉकडाउन हो रही है, ये पैंडेमिक चल रही है, सारे कम्युनिटीज को मुश्किलें हो रही है, बट स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर्स को क्या मुश्किलें हो रही है? ART मेडिसिन का या जो भी फूड रेशंस का, आप बता सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा? हाँ, बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे मैं रहती हूँ, ये दिस इज सबब, तो सबब का आसपास में और छोटा छोटा विलेजेस है सबब का पास पास, जैसे मानो कि दत्तोपुकुर, जैसे मानो कि सोनाकुल की, जैसे मानो कि उस तरफ है बाशपुर, फिर हुमायूंपुर, फिर मध्यम ग्राम, फिर इस तरफ हम लोग का न्यू बैरकपुर। तो छोटा छोटा जगह जो है, जो प्लेसेस है, दो प्लेसेस है बेसिकली विलेज टाइप ऑफ प्लेसेस. And the main problem is that the people, the transgender and the Kinna peoples residing in that area, they have no voice, you know. They cannot raise their own voice. Whatever happens, whatever problem happens, whatever that type of harassment happens, whatever ration problem happens, they cannot raise their voice. The thing is this: if I start from the beginning in 2020, I have seen the people or the clubs are distributing rations. हंसी मजाक का जाता, उन लोग का पुराना नाम लेके खींचाता नहीं कि तुम्हारा नाम तो ये है, तुम रेशन में तो ये नाम पे रेशन ले सकते हो, व्हाई यू आर कमिंग टेक ड्रेस अप लाइक दिस, व्हाई जस्ट कम हियर इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ नेम. Then I suddenly started and say, they keep on crying and say, Guru, these things are happening. Then I said, it's all right, don't worry, I will be doing it. When I'll be doing it, it doesn't matter, I don't care what happens, is that I'll be giving ration firstly to you people. उसके बाद जो बाटा पूछा रहेगा, then I'll be giving to the other people who are positive people or who be corona positive people, maybe लाचार कोई औरत मेरे पास आ जाए उसको देंगे. लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा जो ट्रांसजेंडर है, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा जो यहाँ का किन्नर है, क्योंकि इन लोगों को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता महसूस होता. तो देन आई स्टार्टेड, व्हाट हैपेंड इज दैट, देन आई स्टार्टेड सेइंग टू दारजी कि क्या करना क्या नहीं करना. इसी तरह तो सडनली करते करते एक दो आदमी इधर उधर से डोनेशन आया, इधर उधर से पैसा भी आया, थोड़ा सा मेडिकल सपोर्ट आया, और फिर आप कोशिश फाउंडेशन की भी पैसा आया था. तो इसको जुटला के मैंने ये रेशन बांटना शुरू किया. इसमें से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है मेरा जो मेरा लड़की लोग जो है, जो पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, उन लोग का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है. क्योंकि एक तो मैं उन लोगों का बैठा के बहुत बार समझा चुकी, क्यों ये जो चीज है इसको पहले बीमारी बोलना छोड़ दो. दिस इज नॉट अ बीमारी, हाँ. एंड यू पीपल आर नॉट द पेशेंट, you are the beneficiaries, you people are not the patient. If somebody says you're patient, just call me, मैं हूं ना वहां पे जाके बोलने के लिए. नंबर 1. नंबर 2 इज दैट कोई कोई सोचता कि दिमाग में कि ये चीज चला जाता, ART लेते हूँ, ART का दवाई ले रही हूँ, मैं अभी तगड़ा हो गई तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, बीमारी चला गया. तो मैं उसको समझाती कि नहीं, ये बीमारी नहीं है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक द शुगर. ब्लड शुगर जो होता है वो कभी कमता नहीं है, जब तक तुम जिंदा हो ब्लड तुम्हारा पीछे होता रहेगा. इफ यू बीन टेकन प्रॉपर ट्रीटमेंट तो सर ठीक हो जाएगा. तो इसी तरह का चीज समझा के बुझा के करते करते रेशन जो सिस्टम है वो बांटना शुरू किया. और ऊपर से आपका जो कशिश का जो रेशन है, इसमें एक मजा का स्टोरी है. एक दिन आज का टाइम में हम लोग का यहाँ पे जो रेशन दिया है, एक तो दूसरे NGO का, उसने रेशन दिया, रेशन के साथ कपड़ा दिया, थोड़ा सा कपड़ा. तो अब पूजा का टाइम था, गणपति पूजा का पहले या थोड़ा ब्रीम में, तो
कम्युनिटी वालों को मैंने बोला कि एक जगह से राशन आएगा, जो गुलाबी आईना किया ना वहां से राशन आएगा। वो लोग कशिश फाउंडेशन कुछ नहीं जानते, वो लोग जानते गुलाबी आईना। तो मैंने बोली गुलाबी आईना का मालक है, गुलाबी आईना का मालक हम लोग को रेशन देगा। तो बोले आई बाबा क्या बात है, हम लोग का तो बहुत मजा आएगा। बोले गुरु फिल्म नहीं दिखाना, हमने मेरे पास है नहीं फिल्म, तो दिखाएंगे कैसे, तू लोग रेशन तो ले, बाद में ते लोग को सीख दिखाती हूँ। तो ये बोल के बोला। फिर उसके बाद हम लोग मीटिंग किया, एक दफा शाम का वक्त में बोला, एक पोती का घर में मीटिंग हुआ। तो मैंने बोली चल तू लोग बोल क्या क्या तो लोग का जरूरत है। तो लोग सबको ही कूद पड़ा और बोला अभी मेडिसिन मत दो, अभी हमको कपड़ा दो और हम लोग का रेशन दो। तो मैं बोले क्यों मेडिसिन क्यों नहीं दूं? तो बोले मेडिसिन पूजा का टाइम में कोई मेडिसिन खाता है क्या गुरु? पूजा का टाइम में तो सब कोई नया कपड़ा पहनता है, अगर तुम कपड़ा नहीं बोलोगे ना तो वो लोग मेडिसिन दे देगा और हम लोग का कपड़ा नहीं आएगा। अब बोले हे राम, ये लोग क्या बोलता है। तो बोले ठीक है। तो मैंने दारजी को बोली फोन करके, मैंने दारजी ये लोग ना क्या उन लोग का कपड़ा मांग रहा है, रेशन मांग रहा है। दारजी बोले नो नो नो, तुम लोगों को कपड़ा नहीं दिया जाएगा, तुम लोग का मेडिसिन और रेफरल सर्विसेज के लिए थोड़ा सा लॉयर का सर्विसेज और ये। मैं बोली नहीं आप मानिए ये सब नहीं चलेगा। तो दारजी के साथ थोड़ा झगड़ा भी हो गया मेरे को रात से। आप मेरा बच्चा लोग का बात नहीं सुनती, क्या बात है वो है, मेरा वार्ता ट्रस्ट से ये होना चाहिए। हम बोलेंगे इतना दिन के बाद गुलाबी आईना जो है वो भेज रहा है ट्रस्ट के लिए। तो ऐसा है दिया, फाइनली इट इज बिन डन। बहुत खिंचातानी और दौड़ा दौड़ी हुआ, बच्चा लोग बहुत खुश हुआ। ट्रांसमैन भी था 5 जन, 10 जन ट्रांसवोमैन था। इतना खुश हुआ बच्चा लोग, वो लोग सब लेने के बाद वो कपड़ा पहन के मेरे को दिखा दिखा के देखो गुरु हम लोग का रेशन के साथ साथ भी कपड़ा भी मिला थोड़ा सा। तो दिस आर द थिंग बेसिकली। Thank you, एक बात Matuja, बोलू for ना, sharing that. सच्चा बात बोलू ना कि जिंदगी में इतना दुख हुआ, जितना में जिंदगी में इतना दर्द होता है, अभी भी होता है। फैमिली वायलेंस मैं भी फेस किया, अभी भी कर रही हूँ। पार्टनर वायलेंस अभी भी मैं फेस की हूँ, देखो यहाँ पे मेरा दाग है, पार्टनर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस बहुत फेस। लेकिन ये जो छोटा छोटा बच्चा जब कपड़ा लेता है, जब रेशन लेता है, मुंह में हाथ के आते हंसता है और मेरे को आके बोलता है गुरु बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लगा, हम लोग को बहुत खुशी है। तो मैं ना सब दुख मेरा गम भूल जाता, जो मेरे को इतना मारा, इतना पीटा, इतना कुछ किया, मैं सब भूल जाती हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ। You are very brave. We are very proud of you. नहीं नहीं बिल्कुल बढ़िया। सो Thank बेसिकली you. लाइक Kashish Arts Foundation basically donated 60% of the registration money which we got for Kashish 2020 registrations to 5 NGOs working with transgender community. So Mitra Trust and Bharta Trust were 2 of the recipients. We're going to be speaking to the 2 other recipients next week or later. But Rudrani, what is been your challenges during the lockdown period for the transgender community, and how did Kashish BK Fund, it's a very small amount which we can help the community in whatever the little small way. Yeah. Sridhar, first of all, the support which we got from Kashish, it is not small. Any support which comes is not small, because we know what it means, and you know how when we through that we are able to help people who are in desperate need. I think we can see their faces. There's so much of ease and relax that they know they're gonna survive. So when we speak of challenges, especially आप जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात करते हैं तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास कोई भी जाने के लिए वापस नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन सबको दिक्कत है, हमसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है, पर उनके पास एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है, चाहे इमोशनली हो, मेंटली हो। एंड फॉर लॉट ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल दे आर ओनली वन सिंगल ट्रांसजेंडर पर्सन बाय द ऑल ओन सर्वाइविंग, और उनके लिए सपोर्ट के लिए कौन है? एक दूसरा ट्रांसजेंडर व्यक्ति। सो वो भी उसी सिचुएशन में है। सो जब ये लॉकडाउन शुरुआत हुआ तो वी ऑल वेर इन अ वेरी फन मूड, छुट्टी हो गई एंड टिकटॉक बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, कुछ वी गोना सेलिब्रेट। इट वाज गुड आइडिया दैट ऑफिस के काम से छुट्टी मिल गई, कोतिया तंग नहीं करेंगी, इजड़े तंग नहीं करेंगे, वो घर बैठो थोड़ी देर। बट आई थिंक उसके दूसरे दिन ही रात को कॉल आ गए कि कोई मम्मी बोलता है, कोई गुरु बोलता है, कोई दीदी बोलता है, कोई बहन बोलता है। तो उनमें से कुछ कॉल आए एंड दे सेड लाइक वी आर रियली वरीड एंड वी डोंट हैव एनीथिंग।
तो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि वो एक तो रेंट पे रहते हैं, उनके बहुतों के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो लैंडलॉर्ड उनसे इन जो जनरल पॉपुलेशन से ले कम्युनिटी से लेते हैं, ये उनसे डबल चार्ज करते हैं by saying that we are doing big favor by giving you room, you know, this rent rooms. तो उनको निकाल देने की धमकी। दूसरा जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे बैक करते हैं या सेक्स वर्क करते हैं, वो तो रोज कमाते हैं, हमें अपना ढांचा मालूम है ना। एंड उनके पास क्योंकि बैंक अकाउंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, किसी के पास कोई सेविंग नहीं, किसी के पास कार्ड्स नहीं, कुछ नहीं, सो दे ऑल वर वरीड। एंड किसी के पास जो जिनकी एआरटी चल रही थी, वी वर नॉट श्योर कि जिन लोगों की ऑलमोस्ट दवाइयां खत्म हो गई थी एंड दे नीडेड सप्लाई। तो दिक्कतें तो बहुत तरह की थी। एंड as Madhu mentioned very strongly that you know जो violence हुआ है, violence का stage and स्तर especially LGBT community के लिए बड़ा है। besides transgender व्यक्ति, I think जो trans men हैं उनके लिए और औरों के लिए ये बहुत ज्यादा हुआ है। और एक केस मैं आपको बता दूं पिछले साल से कि एक ट्रांस महिला व्यक्ति जो हमारे साथ रहती थी, वह राशन था पर रूम का रेंट देना था, वो अपनी फैमिली के पास वापस के बाल काट दिए। एंड यू नो दे वांटेड टू, उनके फोन ले लिए एंड दे वांटेड टू टेक हर टू सम डिफरेंट प्लेस। उन्होंने किसी तरह यू नो फोन से पड़ोसी के फोन से हमें कॉल किया एंड हमें पुलिस लेके वहां जाना पड़ा। एंड दिस इज हाउ वी रेस्क्यूड हर। सो आई थिंक बहुत तरह से चैलेंजेस है, जस्ट बिकॉज हम लोग कम मात्रा में हैं और हमारे बारे में बात नहीं होती है, संसाधन नहीं है, इट डजंट मीन हमें प्रॉब्लम नहीं है। जो दिक्कतें सबके लिए थी, ये दिक्कतें तो हमारे लिए पहले से ही थी, आइसोलेशन की, अकेले में रहने की, लोग हमसे बात नहीं करते, हम शॉपिंग मॉल में अच्छी तरह घूम नहीं सकते, कहीं पब्लिक प्लेस पे जाके एंजॉय नहीं कर सकते बिकॉज़ वी गेट टारगेट। आइसोलेशन में रहने की हमें आदत पहले से थी, पर जो दिक्कतें आई हैं साथ में, ये बहुत ज्यादा थी और एक मेंटल स्टेज बहुत लोगों का खराब हुआ है इसमें। सो Yeah, but I'm really, I understand the challenges specifically for the transgender community, especially ART medicines, and also their work is totally stopped, begging and sex work and all that is stopped per se. But I just hope that like the government comes out with more policies. Just to ask you both, I mean, just to talk a bit about what do you think of the Transgender Protection Act which came up in the transgender bill, which has been passed in the government. You want to speak a little bit about that? Do you think it benefits the community or not? I mean, Rudrani? okay, रुद्रानी so तो पहले I'll बोले। Yeah. So I'm not very thorough with what is the reading of this transgender protection bill, because all this COVID thing happened and we have not been able to educate ourselves because everything is very new. But I am seeing how ministry is working is they are talking to communities and they are really supporting communities. Even last year, I remember during COVID, I mean, the ministry supported transgender community with 1,500 rupees. And even this year, they are doing the same. And they do have a shelter home for transgender person who can go, in the time of pandemic if they don't have any place to live. So I think, and let's not blame the government totally and the agencies totally, because I think they are also learning right now. And there are very good possibilities that we may become, a country where we will be, we'll get equal respect, equal rights, and in every other office we'll be working one day. So I don't know. There are of course challenges in the rights and protection bills. You know how it comes from the judgment and the whole thing. You know the process, but I think let's be optimistic. अगर यहाँ तक आ गए हैं ना तो इससे आगे भी जाएंगे। और क्योंकि हमें तो भगवान ने एक हुनर दिया है कि हम बात करके मनवा लेते हैं अपनी बात, और हम ऐसे ही नहीं कि हम बेफालतू की बात करते हैं। क्योंकि lot of people when they ask me कि what do you want as a transgender person, I say I don't want anything anything more than what you're getting and anything lesser than what you are getting. This is what I need. So I think we have already done some percentage of work.
and government is, they have ear for us and we are visible in front of this. ये visibility बनाने में जो समय लगा है और उन्होंने ये मान लिया कि आप हो, I think यही एक वो है, आगे तो चीजें चलती रहेंगी। बढ़िया बढ़िया बात है, बहुत अच्छा कहा आपने। मधुजा, आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में? या द एक्सपीरियंस क्या है, देखो हम जब बचपन मेरा था, जब छोटे थे, तब एक तरीके से गुजरे हैं। तब तो ऐसा बहुत कुछ साधन नहीं था, अभी तो बहुत कुछ साधन है। इसके बारे में दो हम एग्जांपल्स आई से अबाउट स्मॉल स्मॉल स्टोरीज, बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट, आई हैव टू से एवरीथिंग, बिकॉज सबको समझना है, सबको सोचना भी है इसके बारे में। अभी देखो, एक तो जगह तो हम लोग आके पहुंचे हैं, कुछ तो चीज हुआ है जो आई एम एक्चुअली सेकंडिंग रुद्रानी जो है। मेरा बहना ने बोला छोटा सा शेल्टर होम तो हुआ, छोटा सा जगह जो हुआ, जो प्लेटफॉर्म तो बना, छोटा छोटा जो एनजीओ सीबीओ हुआ, जहाँ पे आके हम लोग का मन का बात, मन का भड़ास उभर सके। बट आई वुड से समथिंग एल्स, इसके अलावा ये जो वायलेंसेस हम लोग बोल रहे कि सोसाइटी से मिल रहा है, खाली सोसाइटी से नहीं, इंटर कम्युनिटी भी वायलेंस होता है। इंटर कम्युनिटी, इफ आई से एंड गिव एन एग्जांपल, तो रुद्रानी बोलेगी हाँ ये होता है। देखो, मैं पिछले बार लॉकडाउन में, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था, मेरे रात को 12 बजे मैंने क्या, मेरा का बोंगटी जी नाम का तो ग्रुप है यहाँ पे, जो मैं चलाती हूँ बेसिकली। अभी बच्चा लोग चलाता, मैं पीछे बैक स्टीयर में हूँ, लेकिन देखते हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ, वो लोग कोई बातें चीतें कर रहा था। ओ माय गॉड, सो क्यूट डॉग रुद्रानी। I know, तो क्या, such a cute pet. या, उसमें क्या हुआ, रात को 12:30 बजे तब मेरे को फोन आया, कहाँ से, बोला कि अचानक एक तो बच्चा दूसरा जगह से चीख रहा कि मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को मार दिया जा रहा है। तो मैंने फोन उठा के बोली कि तुम कहाँ से हो, किसने नंबर दिया? तो वहां से मेरे को बोला, कोई एक जन का नाम लिया, जो मेरा यहीं का कोई बच्चा है, बंगाल की कोई बच्चा है। लेकिन ये जो बच्चा है वो बंगाल की बच्चा है, लेकिन दिल्ली में कोई किसी का घर में खाजड़ा पहनते थे, खाजड़ा, सेक्स वर्क प्रोफेशन धंधा में। Yes. बंगाल से उठ के वहां पे गया, और वो कोई हिजड़ा गुरु है, उसका अंडर में कर रहा। अब ये लॉकडाउन का सिचुएशन में क्या है, सब तो ठप पड़ गया। सब जब ठप पड़ गया, तब तो रोकड़ा का बारे में भी प्रॉब्लम आ गया, तब पैसा में प्रॉब्लम आ गया। तब जब पैसा की प्रॉब्लम आ गया, तब तो उसका खाना, पेट, रहना, शेल्टर, सब कुछ बिगड़ रहा, संतुलन। उसको लेके बातों बातों में बतंगर, फिर झमेला, और उसको मारने के लिए उसी रात में स्कूटर पे लेके दूसरा कोई नशा करके उसका पीछे छुप रहा है, इसको मारेंगे, इसको पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बच्चा दिल्ली का कोई तो हॉस्पिटल, आई डोंट नो दिल्ली सो मच बिकॉज आई नो बॉम्बे, ऑफिस का मैं बहुत ज्यादा बॉम्बे गया था। वो सफदरजंग हॉस्पिटल समथिंग हॉस्पिटल का सफदरजंग है, हॉस्पिटल का वहां पे छिपा हुआ सारा रात रहा। और मैंने रात को क्या किया, 1 बजे से मैं कभी आई को फोन किया, तो फिर सिमरन जी को फोन किया, तो लास्ट में सिमरन जी जो है, सिमरन शेख, उसने मेरे को सहारा दिया। उसने बोला हाँ बहुत अच्छा है, बात है, तुम सोचो नहीं, तुम सो जाओ, रात में उसको बोलो मेरे कांटेक्ट नंबर दो, मैं उसको उद्धार करूंगी। फिर उसको उद्धार करके दिल्ली का कोई शेल्टर होम में रखा। फिर वापस उसको जब थोड़ा सा लॉकडाउन खोला, ट्रेन खोला है, उसको वहां से पैसा ऐसा दे के उसको बंगाल में पहुंचा दिया। तो दिस इज एन इंस्टेंस कि खाली कम्युनिटी से बाहर से नहीं मिलता, हम लोग का वायलेंस जो होता है इंटर कम्युनिटी होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो होता है, हम लोग का यहाँ पे देहात है, अंदर में देहात में एक जो बच्चा है, एक तो छोटा सा लड़का है, 16 साल की, उसको उसका मम्मी भी नहीं, पापा भी नहीं, उसको उसका अंकल और आंटी रॉड से इतना पीटा, क्योंकि वो किसी जगह बुक बाइंडिंग का काम करता था। तब बुक बाइंडिंग बंद हो गया, लॉकडाउन में सब ठप पड़ गया। तब उसको लॉकडाउन में ठप पड़ने से क्या हो कि उसको मारा पीटा करके घर से निकाल दिया। तो मैंने एसपीपीसीआर के साथ लड़ाई किया, मेरा ऑफिस का बॉस के साथ लड़ाई किया, चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन का लड़ाई किया, सिर्फ प्रांतोकथा का बापा दी तो मेरा पीछे खड़ा हुआ। तो मैंने बोली इसको उद्धार करना ही है। पुलिस स्टेशन में कोई चाइल्ड बोल रहा कि हर कोई पुलिस स्टेशन में अकॉर्डिंग टू लॉ देयर शुड बी अ चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर, लेकिन जहां पे बच्चा को रखा गया, आई नो वेरी वेल, देयर इज नो चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर। तो मैंने जितना हो सके एसपीसीआर के साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, फेसबुक में सब कुछ करके बच्चा को उठा के रामकृष्ण मिशन जो है एक मिशन में दिया। फिर वहां से अभी वो बच्चा सेफ है कि रंजीता दी का तो शेल्टर होम बनाया छोटा सा, उसमें वो सेफ है। तो मैं भी जानू कि ठीक है, मेरा दिल, मेरा जो बच्चा है
जो ये है वो बढ़ रहा किसी जगह। Yeah. आप दोनों का स्टोरी सुन के इतना एक्चुअली लाइक आई मीन काफी encouraging भी है बट दुखदायक भी है, दोनों है. But you people are the brave hearts personally fighting the challenges of being a transgender person, forming trusted communities to help the transgender community, fighting through the COVID times. Sorry, she's speaking something. सॉरी, बताइए क्या बोल रहे थे मधुजा, आपकी आवाज चली गई थी बीच में. हाँ, तो बात ये है कि बच्चा अभी सेफ है, एक ट्रांसजेंडर शेल्टर होम में है, और फिर वो मतलब बढ़ रहा है वहां पे. अभी वो ग्रोन अप है, 18 ईयर्स हो रहा है उसका, और अच्छा है. क्योंकि इससे पहले जो बच्चा जो होता है, सबसे खराब जो लगता है, मैं अगर मानू कि इतना सारा शेल्टर्स होम है, आई माई सेल्फ वर्क इन ए ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज बेसिकली चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वो तो एंटी ट्रैफिकिंग को लेके काम करता है. लेकिन होते हुए भी जब बच्चा को रखने का बात होता है, तब वो लोग एक्चुअली देखता है कि बच्चा लड़की है तो लेंगे, लड़का है तो वहां पे भेजेंगे. अरे मैंने फिर ट्रांस हुआ तो बोले नहीं नहीं जगह नहीं, सॉरी. मेरा बॉस मेरे को बोला तुमको तुम्हारा नौकरी प्यारी है ना कि बच्चा को, ये ट्रांस बच्चा को बचाने का चक्कर में तुम्हारा, हम लोग गवर्नमेंट के साथ लड़ नहीं सकते. तो चलो अभी कोई नौबत नहीं, काम तो अभी कर रही हूँ, मैं तो फिर से बधाई पेशा में आ गई. वो सब 23 साल का डेवलपमेंट सेक्टर छोड़ के मैं बधाई में वापस आ गई, पुराना पेशा में वो कर रही हूँ मैं हक से. और अभी वो अगर कोई बोलेगा कि लड़ाई लड़ो तो मेरे को कोई फायदा नहीं. हम गुरु को कोई भी किसी भी तरीके से समझा लेंगे क्योंकि मेरे पास दिमाग है, लेकिन लड़ेंगे जब इसको हक के लिए तो बच्चा का पूरा लड़ेंगे, एक तो चीज भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, एकदम पूरा का पूरा लड़ेंगे. अभी तो मेरा नौकरी खोने का कोई डर नहीं है, मेरे को नौकरी खोने का कोई डर नहीं है अभी. Yeah. So you people are brave hearts, totally fighting for the community, surviving as a community together. But really, thank you for joining this conversation. Rudrani, there are comments that you're looking beautiful. And Madhuja and Rudrani, दोनों के लिए comment है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. And somebody else said तो मधुजा की बहुत अच्छा लगा कि वो बच्चा भी सेफ है, जिसके बारे में आप बताया था. So बहुत सारे comments है, but thanks a lot. We need to wrap up this conversation. Really happy that Rudrani and Madhuja joined the conversation and talked about their activities during COVID time. So best of luck to both of you. Please continue your good work. We hope that as Kashish Hearts Foundation, we can do a bit of help. Hopefully in the next year also, we're able to send some money for the rations and the medicines and clothes, importantly, as Madhuja said. They should wear some nice clothes. So definitely we'll try to do that for sure. Thank you for joining in. Rudrani, you want to share anything just before we close? Thank you, Sridhar, so much. You have been not only making good films, educating film, but you're also one of the inspiration of a lot of people who want to be like you and make more artistic creations for the community. We are so proud of you, and I wish all the best for all the Kashish upcoming events. And I am so honored. I never thought I'd be part of it, but I am part of it. And today my two daughters also got, were part of it. Officially, it is recorded now. So thank you so much, Sridhar. It is lovely. Whenever I talk to you, it gives me so much of strength, and thank you so much. Thank you. Madhuja, आपको कुछ sign off के पहले कुछ कहना है आपको? हाँ, फिर से तो मेरे को बहुत कुछ करना है, क्योंकि बात तो इतना छोटा सा नहीं होता. हम लोग को आगे चलना है और लड़ना है और जगह बनाना है. और फिर से और एक तो चीज बोलेंगे, गुलाबी आईना जैसे और फिल्म बनाना है. और गुलाबी आईना तो मेरे दिल में पूरा बसा हुआ है. हम देयर शुड बी मोर, ऐसा कुछ फिल्म है जिसमें हम लोग भी एक्टिंग करेंगे. गुलाबी आईना, मैं, रुद्रानी, बहुत सारा, सिमरन शेख. Was Rishi Raj part of it, right? Yeah, Rishi Raj. Yeah, I worked with Rishi Raj. He's a great stylist, but he looks so different now compared to what he was then. Yeah, So,
Great. Well, thank you for Madhuja and Rudrani for doing the amazing work you people do. We are so Kashish will happen August 19 to September 5th. So we request everybody to sign up for the Kashish Film Festival. You can find details at mumbaiqfs.com or on the bio here at Kashish Film Fest Instagram. So thanks a lot. I really appreciate you signing off. Bye bye bye. Thank you. Bye Stay bye. safe. Bye bye. Bye, Rudrani. Bye. Bye, Madhu. Stay safe. Bye. Yeah, stay safe. Love you. Love you.